राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई रघुवर राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। जिहि चरणन से निकरी सुरसरी शंकर जटा समाई जटा शंकरी नाम बलो है जटा शंकरी नाम बलो है त्रिभुवन तारन आए राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। जिहि चरणन की चरण पादुका भरत रहो लीवलाई सोई चरण के वट धोई लीने सोई चरण किए वट धोई लीने तब हरिना चढ़ाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। सोई चरण संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई सोई चरण गौतम ऋषि नारी सोई चरण गौतम ऋषि नारी परसी परम पद पाए राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। नंदक वन प्रभु पावन कीनो ऋषियन त्रास मिटाई सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनक मृगा संग धाये राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई।
कपिसो ग्रीव बंधु भय व्याकुल तीन जय छत्र धराई रिपु कोयनुजे विभीषण निसचर रिपु कोयनुजे विभीषण निसचर परसत लंका पाई रामचरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। शिव सनकादिक अरु ब्रह्मादिक शेष सहस मुख गाई तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई राम चरण सुखदाई। राम Drinking warm water before bed balances blood sugar levels. સૌને રામ કબીર. ઓમ શ્રી સદગુરુ કબીરાય નમઃ. Diabetic, struggling to lose weight. આપ સૌ ભક્તજનોમાં વસેલ કબીરના રામ આત્મા રામને સપ્રેમે વંદન. શ્રી રામ કબીર ભક્ત સમાજ ઓફ USA તથા સર્વે ચેપ્ટરો અને સર્વે ભક્ત સંસ્થાઓના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર, ફેસબુક લાઈવ અને સમય મળીએ યુટ્યુબ પર જોનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. ભજ મન રામ ચરણ સુખદાઈ કાર્યક્રમની શરૂઆતનું આ તુલસીદાસકૃત રામ ભજન સધર્ન કેલિફોર્નિયાથી વડીલ શ્રીમાન ગોવિંદભાઈ ભક્તે આપણને સંભળાવ્યું. નવા વર્ષે સૌને ભાવવિભોર અને રામમય બનાવ્યા. સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે. થેન્ક યુ ગોવિંદજી. આજે આપણી કબીર વિઝડમ ટીમે સર્વે ભક્તજનોના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખી એક અતિ મહત્વનો વિષય હોલિસ્ટિક અપ્રોચ ટુ મોડર્ન ડિઝીઝ આધુનિક રોગોના કુદરતી ઉપચારો એનો ભાગ 2 પર આપણને માર્ગદર્શન માટે ફરી એકવાર ડાઉની કેલિફોર્નિયાના યોગા ટીચર અને લાઈફ કોચ શ્રીમતી નીલમજી નેગાને આમંત્રિત કર્યા છે. જોડાયેલ ભક્તજનોના આ જ વિષય પરના પ્રશ્નોનો કે તેનો અભિપ્રાયની ચર્ચા બાદ સમયસર આપણે કાર્યક્રમને વિરામ આપીશું. વિશ્વવ્યાપી ભક્ત સમાજમાં સદગત પામેલા સર્વે સ્વજનોના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરીએ.
જીવન મૃત્યુના આ ઘટનાક્રમમાં આપણા સ્વજનોના મૃત્યુનો ખાલીપો દૂર કરવા, તેમના પરિવારજનોને શાંતિ મળે, સદગતની આગળની યાત્રા સફળ અને સુખદ રહે તેવી સદગુરુને પ્રાર્થના. દર રવિવારની સવારે ભક્ત સમાજના પરિવારો આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમ કબીર વિઝડમ પર નિયમિત જોડાય છે. આ સફર એક આધ્યાત્મિક વિસામો છે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં પણ આપણને સાચી સમજણ આપે છે. ઉત્સવોનું સ્નેહ મિલન, ધનતેરસ, કાળી ચૌદસ, દિવાળી, બેસતું વર્ષ અને ભાઈબીજ આપણા સમાજમાં વિશ્વવ્યાપી ભક્તજન ઉમંગ, ઉલ્લાસ, આનંદ અને પ્રસન્નતાથી ઉજવી છે. હિન્દુ કેલેન્ડર પ્રમાણે વિક્રમ સંવત 2081 ગઈકાલથી શરૂ થયું. સર્વે ભક્તજનોને નૂતન વર્ષાભિનંદન. સાલ મુબારક. ભક્ત સમાજના પ્રમુખશ્રી અને ટ્રસ્ટી મંડળના નવા વર્ષના સંદેશા પ્રમાણે આવનાર નવા વર્ષમાં આપના તથા પરિવારજનોને તન મન ધનથી સુખ સમૃદ્ધ રહો તેવી શુભેચ્છા અને એકબીજા પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખી એકબીજાને મદદરૂપ થઈએ એવો સંકલ્પ કરી સદગુરુ કબીર સાહેબના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ એવો સद्भाव व्यक्त કર્યો છે. अब मैं नीलम जी का स्वागत करता हूं. हम सबकी वेल बीइंग, स्मार्ट हीलिंग के बारे में आपने प्राणों का आयाम, प्राणायाम, मेडिटेशन से अंदर की बीमारियां जड़ मूल से ही खत्म होगी, ऐसी प्रतीति हम सब साधक को अगले एपिसोड में आपने कराई है. हमारी श्वासें बॉडी और माइंड के बीच का ब्रिज है. श्वासों के नियंत्रण का मैजिक, योग विज्ञान की बहुत सारी बात आपने बताई. आज भी आप माइंडफुल एक्सरसाइज में हमें आगे ले जाइए. आइए नीलम जी, राम कबीर. राम कबीर सबको नया साल मुबारक, साल मुबारक. साल मुबारक, साल मुबारक. आप सबको हैप्पी दिवाली. कल आपने अच्छा खाना खाया होगा. उधर कम्युनिटी सेंटर में एक प्रोग्राम था आपका, तो खुश हो गए होंगे सब लोग. दिवाली की सब लोग क्लीनिंग करते हैं, दिवाली की क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद बहुत अच्छा लगता है. घर बहुत ऐसे लगता है कि वो अब आने लग गई, लक्ष्मी घर पे आने वाली है, क्योंकि क्लीन कर लिया घर, अब आ जाएगी. तो ऐसे ही आप अपने आप को भी क्लीन करें अंदर से बाहर से. जो अपने थॉट्स हैं उनको उनको हटाएं, उनको क्लीन करें, अपनी बीमारियों को दूर करें. सो यही मेरी होलिस्टिक अप्रोच है आपके लिए टुडे, कि हम कैसे अपनी होलिस्टिक अप्रोच से अपने आप को स्वस्थ रख सकें. स्वस्थ के साथ साथ खुशनुमा भी रख सके, क्योंकि खुश रहना, परिवार में सब लोग खुश रहे तो वो बहुत अच्छी बात है. अच्छा लगता है कि सब लोग खुश हैं, वो भी बहुत जरूरी है. पहले जब मैंने इस साथ पे नहीं थी तो काम करती थी, घर आती थी, काम पे स्ट्रेस हो जाता था, तो बच्चे देखते थे. जैसे मैं घर में एंटर करती थी, बच्चे देख लेते थे कि मॉम आज थोड़े उनको घर पे ऑफिस में कुछ स्ट्रेस हुआ है, और वो अपने अपने कमरों में छुप जाते थे कि सामने ही मत आओ. तो हम अपने आप को ऐसा क्यों बनाया? अब तो सीख लिया है खैर, पर उस टाइम नहीं सीखा था इतना. तभी मैं सबसे शेयर करती हूँ कि थोड़ी सी अपने आप से जो सीखते हैं हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य सीख के ही बड़े हुए हैं. चलना भी नहीं आता था, कुछ नहीं आता था, सब कुछ सीख के बड़े हुए हैं. तो ये भी सीख लेते हैं कि कैसे जब हम घर पे आए तो ऐसा हमारी बॉडी का ऑरा हो, ऐसी हमारी बॉडी की लैंग्वेज हो कि सब लोग हमारे पास आए, बोले नमस्ते, पानी पियेंगे. ऐसा ना हो कि वो देखे कि वो कोई घर पे आया तो वो छुप जाए कि वो इसका तो लग रहा है कि ठीक नहीं है कुछ, और इनसे तो बात ही मत करो, इनसे तो दूर रहो. तो वो थोड़ी सी होलिस्टिक अप्रोच है कि हम अपने आप को कैसे खाली करें. फीडबैक तो मुझे मिला था पिछले वाले सेशन का, और जिसमें मैंने आपको शावर टेक्निक सिखाई थी कि कैसे वर्चुअल शावर करके, होलिस्टिक शावर करके आप आपको क्लीन कर सकते हैं. मुझे मालूम नहीं कि आप सब लोग में से कोई करता है कि नहीं करता है,
क्या बताएंगे कोई जना, अगर कुछ आपको याद हो पिछली बार का? हाँ जी, आप बताएं दीपक जी। आपने बताया था शावर की टेक्निक लेना, तो शावर लेके अभी तो क्वेश्चन था कि व्हेन हम जब बाहर का जब सोचते हैं ज्यादा, तभी ये जब करेंगे हाथ वगैरह लगाएंगे अपने, तो अपना थॉट्स वगैरह स्टार्ट थिंकिंग टुवर्ड्स बॉडी। लेकिन ये प्रश्न मेरे लिए नहीं थे, क्योंकि आई कैन फोकस माई सेल्फ वेरी वेल इनसाइड। सो आपका प्रश्न का उत्तर में आपका टेक्निक सही था, क्योंकि हमारा जो थॉट्स वगैरह वंडर करता रहता है बाहर की दुनिया में, वो उसको सेंटर में लाने के लिए जब हम हमारा शरीर के बारे में सोचता है, तो बाहर से अंदर की तरफ आता है। तो ये हमारा फीडबैक आपके लिए, आपका टेक्निक सही है, लेकिन आई एम यूज्ड टू अबाउट थिंकिंग इनवर्ड। क्वेश्चन मेरा यह है कि आप करते हैं? Am I doing it? Your question is, I don't think I need it, so I don't do it. Maybe I try 1 or 2 times, but no, not practicing all the time, because I can focus my thoughts very well. Okay. So thank you so much for giving me feedback. उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि आई डोंट नीड इट, मेरे थॉट्स ऑलरेडी मैं उसको चैनलाइज करके रखता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जब आप नहाते हैं, तो आप सोचते हैं कि कहाँ से कहाँ पे बॉडी पे गंदा है, कि मेरा ये कान गंदा है या मेरा शोल्डर गंदा है, लाइक माय बैक इज डर्टी और माय, नो, यू डोंट डू दैट. You just go take shower and then you feel new person. You feel like you are a blooming person. You know, that's what I feel after shower. Like every morning they say just go clean up. Even हम सोए हैं घर पे, सोए हैं हमने क्या बेड पे सोए, उसके बाद भी सुबह उठ के कि और शावर ले लो, शावर ले लो. You know why we feel? Because it cleans everything from your body. So that the spiritual shower thing also, it's not like okay you have to find out something within you and then you clean it. Just make a routine to clean your thoughts. इतने सारे thoughts आते हैं दिन में, like you watch YouTube video, you listen to people, and then so many thoughts come into your minds. Perception, आप एक एक्सीडेंट देखते हैं, okay, so let me give you a little bit example because दीपक भाई ने mention किया कि आप एक एक्सीडेंट देखते हैं, okay, so there is a one accident, like okay you feel bad about it and then you move on, right, वो आपके दिल पे इफेक्ट नहीं करता. अगर वही एक्सीडेंट आपके किसी प्रियजन का हुआ हो, जो आपकी फैमिली का हो, तो आपका दिल फट जाता है, आपने हॉस्पिटल की तरफ जाना होता है, आपको ये करना है, आपको लोगों को कॉल करनी है. लुक एट सेम इवेंट, एक एक्सीडेंट हुआ है, सेम इवेंट है, बट whenever you are attached with the emotions with something, it affects you. Okay, so whenever it's like yeah meditation करते हैं, but so many things happen every day. कोई बोलता है, तुम्हें तुम्हें हर्ट होता है and you don't know either. I wish I am like that, but yes, I'm a human being. मेरा डर्ट होता है और मैं क्लीन करती हूँ. So let's do one time. I want you to recall because this is really important technique, like how to cleanse yourself. So let's recall real quickly what to do that. If you want to guys sit on the chair and do that. So spine straight, Rajbhai. ऐसे नहीं बैठा करें, ऐसे बैठे like a king. क्योंकि उसका एक कारण है. फर्स्ट तो आपको कॉन्फिडेंस उसी समय दिखाई देता है जब आप ऐसे बैठते हो, ओके. दूसरा, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है, आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत है. तो आपको क्या, जब आप ऐसे बैठते हैं तो आपकी जो बॉडी के जो लंग्स और ये सारी जो बॉडी पार्ट है वो टच करते हैं एक दूसरे से. आप जोड़ के देख लीजिए, किसी बॉडी को बेंड, किसी चीज को बेंड करके देखें तो वो अंदर से अजीब सा कलर हो जाता है थोड़े दिन बाद. तो सेम बॉडी, हमेशा अपने आप को किंग के जैसे बैठे. कहीं बैठना है, शोल्डर को पीछे कर ले, खड़े घूमने जा रहे हैं, शोल्डर पीछे कर ले. आधा प्रॉब्लम तो उधर ही सॉल्व हो जाती है, बिकॉज यू आर पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ. योर लंग्स, योर हार्ट हैव अ लिटिल बिट रूम आ जाता है उसके अंदर, so it can breathe. Whenever there's a room in between the things, it can breathe properly. So same thing, your body parts like intestine, sorry,
they got इधर इकट्ठी हो जाती है. They got together. So when they got together, they cannot breathe, they cannot work properly. So same thing, sit properly. And real quick, उसमें हम shower में हमने ये किया था कि if you have some issue, then you can just think about your divine people and then take shower. ये तुम आप अपने shower में भी कर सकते हैं, real shower में. Real shower में you imagine कि वो जो पानी आ रहा है वो आपको अंदर से बाहर से पूरा धो रहा है. Take little time with your life and then do it. Okay, so today we're going to talk about how to clean your body and your mind. I did shower technique last time. Today I'm going to talk to you about pressure point techniques, okay? Pressure point techniques like how to be healthy, how to clean your body and your mind. So there are 10 points we talk about. So it's not like it's invented by me. It is invented by our gurus or our Vedas. It's invented by them. So I'm just using this one because I use this one for so many people and it works with that. So we so-call the tapping. We have an energy in our hands, okay? So we have energy in our hands. Everybody know about that one. We have a 5 body elements in our hands. So we have energy in our hands. So we massage. We massage our palm, and then if you massage it, you feel a little bit heat comes here. Okay. So feel the energy, massage it, and then put a little bit apart like this. And if you are paying more attention to that, like Deepak Bhai is a meditator, but even normal person, you feel like their hands become magnet, and then they become coming towards you. So you feel the energy. So you massage your hand first, and you feel the energy, and then you do the tapping. Okay, it's a 10 point. So first we start with from the forehead. Like there is a third eye area, and this is your forehead, like parting. So we tap here. You feel so light after this. We do 5 times. You can do belly breathing while you're doing it. So it goes all the way to the back. So you just parted your scalp and then you're doing it, okay? So you do, I have a nail, but you can do with the fingertip. I can do with the fingertip. I do all the time. So don't go on my look, I'm yogini inside out. So tapping. So whenever you tap something like that, you see the dust get out. Whenever you use your bed sheet and then you just tap it a little bit, you see dust out. Okay, so this is the same thing. When we do it, physical work for you. All the glands, like all the glands right here, like they got vibrations with your healing hand. Okay, so they just surviving. Whatever is dead, they're gonna move because you give them a tap. Remember, like whenever somebody have a heart attack and they give the therapy. What is so called? Heart survival therapy. Okay, so they give a shock. So this is, we are giving shock to your pressure points, which is useful for your body. So holistic approach about going away from medicine, that is the second step. Shower, clean. Because what we say, the events you hold in your body, you don't know how it goes. It give you heart attack later on, the grief, and then you're holding something, it give you heart attack, it makes your sugar high, it makes your knee pain, it makes your back pain, it gave you like itching, like, oh, my bodies have allergies, all kind of allergies. This is all because of your holding things in your body. We say let it go, forgive, forgot. जो लोग तुम्हें दुख देते हैं, तुम्हें लगता है तुम्हारा कहना नहीं मानते, they meant to be like that. Your kids, your elders, oh, they don't listen to me. I see people say people don't listen to me. Okay, they have a hearing problem.
They have a hearing problem because their mind saying they don't listen to me. If you are thinking, I'm supposed to do something and I couldn't be able to do it, okay, I have to go somewhere like my career wise or somewhere, because we have so many things at back. That time we don't have money. Our parents cannot support our study, or we want to do something and we couldn't be able to. Okay, so we just let it go, but it's not, it's stay in your body memory. So it goes, it hurts your knees. If they said if you have problem below legs, it means you are holding something, you want to do something and you couldn't be able to do it. Your heart failure, mostly people have a heart issue because they're hurted inside some way. Mostly people they cancer because they are holding so much grudge in their life. So let it go. Logon ko jeene do the way they are looking for. Okay, it's okay. Just you have to teach yourself it's okay. Okay. Physically, we eat banana in the morning, or we mango in the morning, or that fruit become our body by the noontime. That become our body. That's body capable is. But we just need to know how to handle this thing, how to run this body. Mindfulness, present. Even though you are not thinking anything right now, you are not thinking what is happening or what she's talking about. You're just paying attention. Like, okay, कुछ तो मिल जाएगा जो बोल रही है इसमें से. कुछ तो ढूंढ लो. You know, maybe some, not the all the things for you, not everything for everybody, but कुछ तो ढूंढ लो जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जीने के लिए काम आ सके. Okay, let's back to the pressure point. So we did this one first, like parting one. Okay, the second one is the ear. So we tap our ear. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now one. Each one time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now this one. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Take a deep breath. Okay? Don't keep asking me कि इससे क्या होगा. करो, फिर देखो कि इससे क्या होता है. Okay, you feel light about it because these are हमारे जो वेदास हैं उन्होंने बताया those pressure points. Okay, the पहले राजा लोग और योगी लोग यूज करते थे अपने लिए, पर अभी वो पूरी दुनिया के लिए खुल गई है किताबें, तो यूज करो. Okay, so now the other one is under your armpit. Okay, so you press 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नहाने से पहले भी कर सकते हैं ये थेरेपी. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब 1 by 1 करेंगे क्योंकि लेफ्ट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन होता है. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, तो ये आपने अपनी रेगुलर रखना है those therapies. Okay, so now we come to the वर्गर वे. इट्स राइट हियर. यहाँ से कहते हैं कि नीचे लिक्विड जाना चाहिए, तो हम इसको टैप करेंगे. ओके, तो अगर आपके हाथ ऐसे नहीं जाते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट टैप इट. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7. हाथ लगने चाहिए. अगर ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो नहीं, हाथ लगने चाहिए. अगर हाथ नहीं पहुंच रहे तो ऐसे से कर लो, तो हाथ आपके आराम से पहुंच जाएंगे इधर. ये एरिया को टैप होना चाहिए, लाइक इधर इधर जोर लगना चाहिए आपको, ऐसे धप 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 धप, जैसे कि वो साफ हो रहा है. ओके, तो एक एक मुझे तो सही, और उसके बाद फिर एक एक करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Take a deep breath. Inhale, exhale. Just relax your body. I don't know about you, but I already start feeling a little bit lighter than before. तो अभी हार्ट के लिए करेंगे, जैसे मोगली करता था ऐसे ऐसे से करना.
1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे नहीं, हार्ट किधर होता है, हार्ट को पंप, हार्ट को थोड़ा थोड़ा हिलाना है, ज्यादा जोर से नहीं, नॉर्मल। 10, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, मेक अ फिफ्थ, 7 8 9। ओके, अभी कैमरे के सामने आपको नहीं करना तो कोई बात नहीं, जब आप अकेले में करेंगे तो आप बिल्कुल ढंग से करना, ये बहुत अच्छी थेरेपी है और काम आती है। एंड यहाँ पे जो ये जैसे एल्बो है, इसके अंदर जो सॉफ्ट एरिया है, यहाँ पे करें, ये एरिया को टैप करना है। ओके, बाजू के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरी साइड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ये सारी वाइब्रेशन अब आपकी जो इट्स कम टू योर आर्म्स एंड लेग्स इन योर बॉडी, सब ठीक हो जाता है। अपने डॉक्टर खुद बनो, और ये स्टमक पे करना है। जैसे स्टमक पे ये हमारा बैली बटन होता है, इधर टैप करना है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, ये बैली बटन है मेरी, मैं साइड पे किया पहले, अब मैं ऊपर करूंगी। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2। ओके, कोई शर्म नहीं है, अपनी बॉडी है, उसको ठीक करना है, और उसको वाइब्रेशन भेजो। ये आपका पावर हाउस है, पावर हाउस से आपका फूड डाइजेस्ट होता है। अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता तो सारी गैसेस जो है वो पूरी बॉडी में चली आती हैं। जो यहाँ पे एल्बो में दर्द हो रहा है, तो कंधों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो खाना खाएं, उसको डाइजेस्ट करें। और उसके बाद ये पीछे जहाँ पे आपकी किडनीज होती है, उनको करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जोर से ऐसे थपकी मारे कि ऐसा लगे कि वाइब्रेशन हुई है। तो एक एक बार, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, I don't know मेरे हेडफोन क्यों नहीं चले, तो मेरी केबल है, so that's why I can't move much, but I'm showing you whatever I can। और दूसरा करना है, ये नी के नीचे, ये जैसे नी है आपकी, इसके नीचे का एरिया है, इस सॉफ्ट एरिया, इसको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी लात का करना है फिर, 1 2 3 6 7 8 9 10। उसके बाद एक एक दोनों में, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 9 7 6 5 4 3 2 1। आई थिंक 9 पॉइंट हो गए। और एक जो लास्ट का है, ओके, ये जैसे आपकी लातों के जॉइंट होते हैं, राइट, इधर, ये लातों के जॉइंट पे मारना है आपको। ओके, मसाज करनी है ऐसे। ओके, ये वाला जो पोर्शन है, ये बहुत बहुत वेयर्ड होता है हमारा, हम लोग उसे टच भी नहीं करते। हम लोग उसको ज्यादा टच नहीं करते हैं, बट आप उसकी मसाज करें। ओके, अपने वो जो लातों के जॉइंट्स हैं उनको मसाज करें, ऐसे रगड़ रगड़ के 10 बारी, और उसको टैप करें। आप देखेंगे आपके नीज कैसे ठीक हो रहे हैं। आपके पैरों में अगर दर्द हो रहा है, जैसे कहते हैं ना, वेन्स हो जाती है वर्कर्स वेन्स, लाइक हाउ दे आर इम्प्रूविंग इट। Okay, it's not going to be do overnight. Let me tell you. Don't believe like, okay, she's like allopathic doctor, she's going to give me a migraine tablet and it's going to work. No. You take your time to spoil your body like this. You know, your body was not like that. And it takes years to become like, I have a diabetic, I have a blood pressure. So we are on first step, like fading the thing away. My theory is a medicine-free life. I don't want any medicine in my life.
Okay, I'm not provoking you not to eat your medicines. You do it. But please, whatever I am talking to you or you are taking from somewhere, apply to your life. So what is happening? Okay, Zoom meeting. Okay, YouTube. Okay, this speaker or this speaker. Taking, but not applying to your life. Please do that. Whenever you apply to your life, it works. And it's not going to work overnight. I'm pretty sure about it. You have to bring to your life. जस्ट एक स्केड्यूल बना ले कि नहाने से पहले ओके नीलम जी ने बोला था कि वो टैपिंग करनी है टेक योर टाइम ओके पुट द क्लॉक लाइक ओ आई एम गोना टेक हाफ एन आवर शावर एवरी मेरे हस्बैंड इतना लंबा शावर लेते हैं 1 hour whenever some guests come they got bored like oh वो तो बाथरूम से ही नहीं बाहर आ रहा so they get upset like oh जान के बाहर नहीं आ रहा. But I know he's like that. He's take 1 hour. So I tell them all the time, oh, he just got into the shower. It's going to take 1 hour. So whenever you make habits, people know about it. I made a habit. I have to go to the satsang. It's 3 to 5, 2 hours. So everybody in my family know, oh, she's going to go for satsang. She's not available. वो गेस्ट आने ही बंद हो जाते हैं उस दिन because when you decide you have this is your time, you want to clean your mirror, you go to the satsang. You go to the satsang. You have 1 hour right here, like, oh, I'm gonna do the Zoom meeting, Bhakta Samaj. Everybody know he's doing it. But whenever you are stable, whatever you're doing, people will go around you. Whenever you're thinking about them, like, yeah, then you're done. So same thing. Whatever you're learning, please apply to your life. Whoever, I'm not saying just whatever I'm saying, whatever you got something right for you, do it. वो बोलते हैं सुबह उठ के ये पियो वो पियो ओके मैंने सुना बट आई डोंट डू दैट व्हाई जस्ट ट्राई टू डू अपनी आंखें ठीक रखो मेक श्योर यू आर नॉट ऑन द बेड रिडो कोई तुम्हें तुम्हें देख रहा है तुम्हें अल्जाइमर हो गया तुम्हें तुम्हें कुछ हो गया नो डोंट डू दैट जस्ट टेक केयर ऑफ योर लाइफ until unless you are aware of it. डोंट लुक फॉर एज की अभी तो मैं 50 का हो गया मैं 60 का हो गया अभी तो मेरे से नहीं होता मेरे तो घुटने दर्द होते हैं नो I want to say a few things about so who knows Newton's theory. Is anybody can unmute and say something about it? What is the Newton theory? Is anybody can unmute and say? You mean about what you taught right now, Nilamji? The Newton story, like how our body made out of it, how वो cell से बनी है, कैसे बनी है. Oh, I'm not a biologist. It was never my subject, but I can tell when I'm tapping and all, I thought only muscle part you were focusing, not a bone part. And I can feel vibration. No. Those are pressure points. There is no muscle, no bone. Those are holistic pressure points I was talking about. Yep. Holistic pressure points. Here, under armpit. जो भी inside part of your body. Just imagine you are a dog and you are on your 4 legs. Whatever the inside of your body part, you have to tap. Those are the pressure points I was talking about. I'm not talking about your, I'm not focusing on anything. It's like a holistic pressure point and they work. Like I explained, if you eat banana or breakfast or gasia or jalebi in the morning, that's become part of your body by afternoon. It's no more jalebi in there. It become you. शुगर को कहाँ भेजना है मैदे को कहाँ भेजना है salt को कहाँ भेजना है what is the requirement of salt your body know it has a sensors in there but only thing you have to pay awareness in your body okay so Newton का सिद्धांत ये है कि before they said like our body made out of the cell okay and then later on they said oh no it's not cells it's a wave so they said it's made out of the wave आपकी body wave है okay now what happened what they did they put a camera actually
whenever they are doing those research. So to study the waves, like how they goes, how the mind fluctuates. I remember people are talking about like if you chant mantra with the water near water, and then when they check it out, that it become crystal. It is crystallite. It says Gayatri mantra crystal in the water. I don't know if you heard about it. If you chant some bad things near the water, then it's a negativity you are consuming. So they said, have your water, say good word to your water and drink it. So the good things goes into your body. You can Google it if you never heard about it. But my point is, what is your body? How it works? So how you have a something in your body, it's so called your soul. So whenever you're born, they want you to cry. So they want to make sure like, oh, you are alive. The Atma is in. So whenever you're out, your Atma is out whenever you're dead. So what is running your body? What is that? So scientists, they always try to figure out like, हो क्या रहा है तुम्हारी body में? So Body, they observe, they put a camera, and then they see whenever they observe the camera or start observing, the waves they become one shape. They become object. And whenever they remove the cameras back, and then it start become wave again. That is so weird actually how it works. So in your life also, एक और example देती हूँ. You have a paintings, right? You have a nice painting at your home, something decorative. So you put the spotlight on that, right? Spotlight डालते हैं उस पे, उसको दिखाने के लिए कि वो ये बहुत सुंदर चीज है हमारी, इसको देखो स्पॉटलाइट है, राइट? स्पॉटलाइट का मतलब यही होता है ना कि yeah, आप alarm. उसको दिखाते हैं. हाँ, स्पॉटलाइट का मतलब ये होता है कि आप उसको दिखाने की कोशिश करते हैं. ओके, सो योर लाइफ इज ऑल्सो सेम थिंग. whatever you are observing or spotlight it become. जो जानवर होते हैं उस दे हैव अ लिमिट, लाइक उनको खाना है, प्रोड्यूस करना है और सो जाना है, राइट? दे हैव अ लिमिट. उनकी लिमिट रखी है भगवान ने कि वो यहाँ तक ही चलेगा, बस दैट्स इट. इंसानों की कोई लिमिट नहीं रखी, उनका ग्लास उन्होंने ओपन रखा है. उसकी वजह से क्या होता है कि अगर हमारा पेट भी भरा रहता है ना, जैसे शेर कहते हैं उसका पेट भर गया, उसके पास जाएंगे तो भी वो आपको खाएगा नहीं, राइट? बिकॉज वो ही इज नॉट हंग्री. सो फॉर द ह्यूमन, the hourglass is God left it empty, so there is no limitation. There is no limitation. But the problem is we observe, we put highlight to our miseries. कोई घर में आता है तो बोलेंगे यस मेरा ये घुटना नहीं चल रहा, मेरी एल्बो, मेरा शोल्डर फ्रोजन हो गया. कभी किसी ने बोला कि मेरा तो बड़ा घुटना अच्छा चलता है, मेरी तो आंखें बड़ी अच्छी चलती है, मेरे को तो दिखाई देता है, मैं तो इतने का हो गया अभी तक भी मैं ये करता हूँ. कभी बोला है किसी ने किसी को? सो व्हाट वी ऑब्जर्व, हमारी जो मिजरीज हैं कि वो मेरे, बोलेंगे कि वो मेरे बच्चे सुनते नहीं है मेरी बात. हाँ कि, तो सोचो कि बच्चे सुनते नहीं है बात, तो सोचो अगर उसको डिटेल में लेके जाओगे कि वो सुनते नहीं, क्या वो कभी भी नहीं सुनते? क्या उन्होंने कभी सुना ही नहीं आपका? वो बचपन से आपको ही सुनते आ रहे हैं. हाँ, कोई चीजों में वो दे आर नॉट एग्री विद यू, सो दे डोंट लिसन टू यू. बट आप सोचो कि अगर आपको सुनते रहे वो, कि वो कह रहे हैं कि अच्छा अब 2 कदम चल, अब 4 कदम पीछे आ जा, जा दरवाजा खोल, जा दरवाजे के बाहर चला जा, जा अब खाना खा ले. डू यू वांट दैट? ये सुनाना आपको उनको? तो सुनते नहीं है. कितना कितना वाइड है चीज ये, कितनी बड़ी चीज है. पर सोचो तो सही, यूनिवर्स में क्या छोड़ रहे, सुनते नहीं है, क्यों? बोलो कि वो उनके उनके विचार थोड़े अलग हैं. वो करियर वाइज थोड़ा डिफरेंट सोचते हैं. जमाना बदल गया. अपने आप को देख लो, आपके माता पिता क्या थे. ओके, ठीक है, आप उनकी सुनते थे क्योंकि जमाना डिफरेंट था, पर वो जो चाहते थे वो तब आप भी वैसे नहीं थे. वो भी, उनको भी शिकायत रहती थी बच्चों के बारे में, तो आपको भी रहती है. तो कभी ये नहीं बोलो कि वो सुनते नहीं है. तो सोचो क्या कह रहे हो.
सो यू हाईलाइट द थिंग कि वो स्पेशल क्यों, ये चीज है जो कि वो सुन नहीं रहे हैं मेरी, डिस्कस कर लो। पर एक वेग सेंटेंस लेके मत जाओ अपने दोस्तों के पास। ओ मेरे तो माता पिता को ब्लड प्रेशर था तो मुझे तो हो ही गया है। मुझे हो गया है, डॉक्टर ने बोल दिया दवाई खानी है। कभी सोचो तो सही कि वो माता पिता के बाद तो बहुत सारी चीजें थी, सारी चीजें क्यों नहीं मिल गई आपको? सब ब्लड प्रेशर ही क्यों आ गया है? जब तक हाथों में आप लेते हो तो मिलता है, अगर आप हाथों को छोड़ दोगे तो गिर जाएगा नीचे। एवरीबडी नो दैट। सब सब मानते हैं इस बात को कि आप लेते हो, पानी लोगे तो आएगा, अगर लोगे नहीं तो कैसे आएगा? तो ब्लड प्रेशर क्यों ले रहे हो अपने माता पिता से? रिफ्यूज कर दो ना कि नहीं नहीं वो तो उनको था, मेरे को तो है ही नहीं, मेरा तो नाक भी डिफरेंट है उनसे, मेरी आंखें डिफरेंट है, बोल के तो देखो अपने आप को ऐसे। पहले पहले लाइक शुगर हुई नहीं, ओ मेरे तो फैमिली में शुगर चलती है, मेरे को तो होगी होगी। फिर तुम डिनाई करके तो देखो। You deny it. That's what you learn. You deny what you don't want in your life. You focus. You highlight those things you want in your life. सोचो कि मेरे पापा तो बहुत इंटेलिजेंट थे, तो मैं भी इंटेलिजेंट हूँ। माला जप लो उसकी। माला जपना कहते हैं, जैसे लाइक हम लोग माला जपते हैं, गुरु की माला जपते हैं, माला जप लो। मेरे पापा इंटेलिजेंट थे, उनको तो कुछ ऐसा बीमारी नहीं थी, माला जप लो, मेरे को नहीं है। हम किसकी माला जप रहे हैं? 25 के हुए नहीं, ओ मेरी फैमिली में शुगर चली आ रही है, ओ मैं तो शुगर वॉच करने लग गया। तो हमने माइंड को क्या बोला कि हमें शुगर होनी है, होगी जरूर, बिकॉज यू फोकस। मैंने बोला ना वेव से, आप गूगल करके देख ले एक्सपेरिमेंट, ये पूरा बॉडी के लिए वो वेव्स कहते हैं, पर जब तुम उसको ऑब्जर्व करते हो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। सो दैट व्हाट इज हैपनिंग टू योर लाइफ, यू आर फोकसिंग ऑन द रॉन्ग थिंग्स। ट्राई टू avoid those things. Don't listen to those voices come in your mind. ओ मेरी फैमिली में तो कैंसर चल रहा है, तो डॉक्टर का तो काम ही है, उनकी तो किताब लिखी हुई है। दे डोंट गो विद योर बॉडी, विद योर माइंड, दे गो अच्छा तेरे को ये हो गया, ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स है, ये है, ये है, ये है, ये सिम्टम्स है, अच्छा तुम्हारी फैमिली में है, अच्छा तुम शुगर खाते हो, तुम शराब पीते हो, ओके तेरे को तो शुगर, तेरा तो लीवर खराब हो गया। I'm not promoting to excess sugar or alcohol or something. I'm saying whatever you taking it, take it monetary way. कि ऐसा नहीं कि खाते ही जा रहे हैं, अभी दिवाली आई है, बहुत सारी मिठाई खा ली, तो डू फास्टिंग, इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, 6 घंटे तक, 12 घंटे तक मैंने नहीं कुछ खाना, या 10 घंटे तक नहीं खाना, बॉडी को ठीक कर लो। वो सारा वो ठीक इधर उधर जाके जब एक और शुगर नहीं मिलेगी, अपने आप ही वो यूज कर लेगी और वो अच्छी शुगर बन जाएगी आपके लिए। तो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने आप को खुशनुमा बनाओ। हाईलाइट दोज थिंग्स विच यू वांट इन फ्रॉम लाइफ। वो सारी कॉर्ड्स कट कर दो। वो सोते समय हमेशा वो कट कर दो, जब वो जो माइंड आपको कहता है ना कि वो मेरे पिताजी ऐसे थे और मेरी फैमिली में हार्ट अटैक हो रहा है तो मुझे भी हो सकता है, पहले से ब्लड प्रेशर की और वो सारी दवाइयां लेनी शुरू कर ली। उसको डिनाई करो कि नहीं वो नहीं होगा, मैं नहीं होता। उसको कंसंट्रेट करो कि जो ओलंपिक्स में जिसने अपनी एक टांग भी कटी है और वो जाके जीत रहा है उधर। मोटिवेशन, उसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन लाओ अपनी जिंदगी में। लिखो कि मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम है, ओके लिखो कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। जो जो किसी के लिए नहीं करना, ये नहीं कि अपने बच्चों को लेक्चर देने लग जाओ, नो, अपने को करो पहले। लिखो कि ये चीजें मेरे को काटनी है अपनी लाइफ में से, डिनाई कर दो, हाथ खोलो ही नहीं, वो तुम्हारे पास आएंगी नहीं, छोड़ दो उसको, ऐसे ऐसे छोड़ दो, अपने आप पानी नीचे जाएगा अपने आप ही। कोई कहता ना, कोई कोई तुम्हें बहुत बहुत तंग कर रहा है, क्यों तुम्हें उससे पे गुस्सा आ रहा है, तो देखो सोचो कि वो क्यों तंग करता है, तो तुम्हें पता लगेगा, तुम बहुत डिटेल में जाओगे। जैसे मैं डिटेल में गई, मैंने बोला एक सेंटेंस की मेरे बच्चे सुनते ही नहीं है, ओके, तो वो एक रॉन्ग अनवेट स्टेटमेंट है कि सुनते नहीं। अगर उसको डिटेल में जाओगे तो क्या नहीं सुनते, क्या सुनाना है तुमको उसको?
अभी अभी खाने को हाथ में पकड़, अभी ये धीरे धीरे मुंह में ले जा, अब उसको चबा, वो सुन रहा है मुझे, यू डोंट वांट दैट, राइट? तो उस पॉइंट पे लेके जाए कि क्या नहीं सुन रहे, तो सोचो कि मुझे सुनाना क्या है उनको, क्यों सुनाना है उनको, क्यों हमें उनकी लाइफ फ्लोरिश बनानी है? अपनी बनाओ, अपने आप को ठीक कर लो पहले, अपने आप को सुन लो, अपने आप को सुना लो। हम उम्र के उस दौरान पे हैं, वी आर एट दैट लाइफ मोमेंट, लाइक एज ऑफ दोस लाइक अबव 50, we have a money, we don't have any issue with the problem with the money, we are living in USA, so what we need a happiness। ऐसे घर में घुसो कि लोग कहे भाई वाह आ गया, पापा आ गए, दादाजी आ गए, नाना जी आ गए और बेटा आ गया। ऐसा ऑरा बना लो खुशनुमा अपना, जितना टोकरा बाहर से भर के लाए हो स्ट्रेस का अपने जॉब से और कहीं से, अभी उसको खाली करके आओ। कार में बैठो थोड़ी देर, घर में अंदर आने से पहले कार में बैठो, लाफिंग टेक्निक कर लो, टैपिंग कर लो, देखो कैसे लाइट हो जाते हो आप, ब्रीद कर लो, गाने सुन लो। जैसे आप आ रहे हैं, बजाय कि ट्रैफिक में लोगों को देखना कि वो ये धीरे चला रहा है, तेज चला रहा है, और ये आगे ले गया, पीछे ले गया, क्या हो रहा है, बहुत ट्रैफिक है, अपने गाने सुनो, गाओ, गुनगुनाओ, गाओ जोर से साथ में। कैसे देखो तुम्हारे तुम्हारे दिल में से जो फंसा रहता है ना, सब निकल जाता है जब आप गाने गाते हो। गाने गाओ, बट मेक श्योर करो कि तुम, you are not being a robotic person, like you are not, like you get out from your office and you are very stressful and you sit in your car and your mind is driving your car, you know where is your home is, you just come to the home, get out from your car and open the door loud and like, oh, I had a bad day. That is so called you become a robot. You are not human. Humans can handle themselves, they can smile. Okay, you have a loss in your business, somebody giving you hard time, nobody is listening to you. Whenever you get out from your office, being a human, say, oh, मुझे ठीक होके घर जाना है, मुझे नहीं ये टोकरा घर लेके जाना। Sit in your car, take a deep breath, laughing exercise कर लो, हा 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 हा, इतनी सुनी है, करके देखो, ओम चैंटिंग करो जोर से 10 टाइम, उससे ठीक हो जाता है। एंड देन यू लिसन द म्यूजिक। अरे जा यार, आज मैं मर जाऊंगा तो किसको क्या फर्क पड़ेगा? जस्ट इमेजिन, से टू योरसेल्फ कि आज अभी मर जाता हूँ, देन व्हाट हैपेंड? नथिंग, नथिंग गोना, नथिंग। Man, within a month, people will start living their own life. They will settle down. The things you get attached with those, they just throw those things first. So mindfulness, be within you. Whenever you get out from your office, वहां पे थोड़े पॉइंट लगा दो कार में, कि वो जब वो तुम्हें स्टार लगा दो, कि जब स्टार देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी, कि वो कह रही थी हंसना है, लाफिंग करना है। ओके, डोंट टेक थिंग्स एट योर होम, थिंक, टेक ब्लेसिंग, ब्लेसफुलनेस। जब तुम एंटर करो तो लोग खुश हो जाए। ओके, सो अगेन, हाईलाइट द थिंग्स वट एवर यू हैव इन योर लाइफ, गुड लाइफ फील, इमेजिन एवरी नाइट कि मेरे को ये चाहिए, ये लेके सो, ये नहीं लेके सो कि ओ ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, ओ मेरी बहू के बच्चा नहीं हो रहा, ओ हमारी जनरेशन कैसे जाएगी। यू आर नॉट फॉर देयर, यू आर हियर फॉर योरसेल्फ। वो भगवान से कनेक्शन करना, वो पूरी अपने अच्छे कर्मा को कलेक्ट करना, ब्लेसफुलनेस से जाना, लोगों को खुश देखना, दैट्स व्हाट यू आर हियर फॉर। खाना तो कोई भी जानवर खाता है, और उसको भी देख लो, खाने को खाने से पहले नमस्ते कर लो उसको, थैंक यू सो मच। तुम, जलेबी भी है, फाफड़ा भी है, जो भी है, उसको ये कि देख के नहीं बोले इसको तो खाते मुझे गैस हो जाएगी, और खाओगे भी उसको, और पहले ही बोलोगे इसको खाते गैस हो जाएगी, तो क्यों नहीं होगी? उसको बोलो कि तुम मेरे अंदर जाओगे और बड़े मजे से जाओगे, बस ऐसे ऐसे अंदर जाओगे और बस बहुत अच्छा मुझे फील होगा। करके देखो, सुबह उठ के थोड़ा वो कहते करी पत्ता मुंह में डालो, करो, करी पत्ते 2-4 खा लिए तो वो चाय पीने को दिल ही नहीं करेगा।
मुझसे पूछो. I'm gonna take a question answer. I'm done talking. So I'm gonna take a question answer. मुझसे पूछो कि ये मेरी एडिक्शन है और मैं इसको कैसे छोड़ूं. तो मैं बताती हूँ आपको कैसे छोड़ो. पूछो मुझसे क्या प्रॉब्लम है, बताओ. I'll try to answer. Okay, sorry. I have to say for two more things. Okay, highlight मैंने बता दिया आपको किसको highlight करना है. And then kill ants. Kill ants means वो कीड़े मारो जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं. जैसे कि मेरे दिमाग में कीड़ा आया मैं कि यहाँ के बोल रही हूँ, मुझे ये कौन सा सुनने वाले हैं, इनकी लाइफ क्या चेंज होगी. ओके, वो कीड़ा मेरे माइंड में आया तो मैंने उसको मारा नहीं. ये मेरी जॉब है. मुझे दूसरों को डायरेक्ट नहीं करना कि वो क्या कर रहे हैं. मेरी जॉब है, मुझे बोलना है. ओके, मेरे को आता है जो और जिससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है वो मुझे आके बोलना है. वो मेरी जॉब है, दैट्स इट. तो मैंने वो कीड़े को मारा. राइट. कोई आ गया, ये आया है, अब ये पैसे मांगेगा, ये कुछ करेगा, पहले एज्यूम कर लिया अपने आप को. दरवाजे बंद कर लिए दिल के. अपनी अपने बॉडी का और खराब कर लिया, अपनी शक्ल बना ली कि अभी ये आता है ना जो पैसे मांगता है. मे बी इट्स ओके. क्या पता उसको जरूरत हो, क्या पता आपने उससे पिछले जन्म में लिया हो जो आपको देना. वो आपका कर्मा काटने आया है कि वो अगले जन्म में फिर आपको देना नहीं, लेना नहीं पड़ेगा. क्या पता इसलिए आया है. तो खुश हो जाओ, जो भी आता है उसको देख के, जैसा भी आता है उसको देख के खुश हो जाओ. अगर ज्यादा तकलीफ है तो बात कर लो कि वो ये क्या है यार, मेरे को ऐसे लगता है. खोल दो सारे दिलों के दरवाजे. किल एंड्स. अपने कीड़ियां मारो. देखो क्या क्या बातें आ रही हैं दिमाग में कि ओ ये तो जो जो दिमाग में बातें आ रही है उनको मारो और वो पॉजिटिविटी लाओ. क्लीन योर बॉडी और माइंड, ये मैंने आपको दे दिया. अम, अपने फ्रेंड से मिलो, गाने गाओ. अपने दोस्तों से मिलो दिल खोल के. ये नहीं कि उनको जजमेंटल के लिए जा रहे हो. दिल खोल के मिलो एंड देन लर्न समथिंग न्यू. जब हमारे पास पैसे हो जाते हैं तो हमारा माइंड बहुत खाली होता है. जजमेंटल हो जाता है. अच्छा ये ऐसा है, अच्छा इसकी जॉब ऐसी है, इसकी बहू ऐसी आई है, इसका पोता ऐसा है, इसने गोरे से शादी कर ली, उसने काले से शादी कर ली. उसको सबको छोड़ के लर्न समथिंग. कोई चीज लर्न करनी शुरू कर दो, कोई लैंग्वेज लर्न करनी शुरू कर दो, कुछ भी करना शुरू कर दो. क्लासेस ज्वाइन कर लो, पेंटिंग करने शुरू कर दो, ग्लास पेंटिंग करनी शुरू कर दो, कुछ निटिंग करनी शुरू कर दो. तो लर्न समथिंग. अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मेरे को क्या करना है, किताबें पढ़ो. और ये नहीं कि मैं ये कह रही कि मैं मना नहीं कर रही आपको ध्यान भजन करना, अच्छी बात है. बट आप अपनी लाइफ में ब्लेसफुल हो. अपने बच्चों को हेल्प करो, उनको लाइक खुशी हो उनको आपको देख के. वो भी खुश हो जाए आपको देख के. ये नहीं कि गए हो ये अब पापा आ गए अब यही बोलेंगे कि "ओ, ये क्या कर रहा है तू, वो क्या कर रहा है तू, वो लड़की है तो ये क्या कर रही है, इसको ऐसे क्यों शादी क्यों नहीं करी इसने अभी तक, ये क्या है, इसका बॉयफ्रेंड है, फलाना ढिमकाना." तो सब अपने अपने कर्मा के लेके आए हैं. वो टाइम डिफरेंट हो गया है. ओके, जब हम यूएसए में है, इंडिया में भी सेम ही है एक्चुअली. तो जहां पे हम रहते हैं वो चीजें चेंज हो गई है. तुमने अपनी जॉब कर ली, उनको रेस कर दिया, अच्छा कर लिया, तो अब अपनी ऐसी बॉडी को समझा लो कि वो उनकी जरूरत ना पड़े आपको. आप खुद ही खाना खाओ मरते दम तक, खुद ही अपनी पॉटी साफ करो, खुद ही सब कुछ करो. कोई तारे ना लगी हो, स्माइल करते हुए जाओ इस दुनिया से. जैसे कि वो कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र में कि ककड़ी अपनी उससे अलग हो गई. आई लाइक दैट. आई लाइक दैट एक्सप्रेशन एक्चुअली कि ककड़ी अपनी बेल से अपने आप ही अलग हो गई. सो आई सी माई सेल्फ गोइंग लाइक दैट. ओके, सो यस. ओके, हो गया. चलो क्वेश्चन आंसर लेते हैं. एनी क्वेश्चन इफ यू हैव इट वी कैन डू दैट. नमस्कार नीलम जी। नमस्कार. अ, आपने क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन एक ना ऐसा क्वेश्चन है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अभी एक बहुत बड़ा सब लोग बातचीत करते हैं। तो आपने जो बहुत अच्छी बात की, तो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सेम चीज है कि फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन समथिंग डिफरेंट है? और वो लोग किस तरह समझ सकते हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? ओके, जैसे मैंने बताया कि
जानवरों के लिए और बाकी लोगों के लिए गॉड ने ना एक ऐसा एक पैमाना रखा है कि इतना ही है बस, और ह्यूमन के लिए खुला रखा है। ओके, सो ह्यूमन के लिए खुला रखा है कि यूनिवर्स इज देयर फॉर यू। आप कैसे कहते हैं कभी कभी कि ओ मैं माथा टेक के गया था और मेरा काम बन गया। सो व्हाट इज दैट? वो क्या था कि मैंने जोत चलाई थी, मन्नत मांगी थी और मेरा तो काम बन गया। वो कैसे हो जाता है? तो वो ऐसे होता है कि पैटर्न्स होते हैं, लाइक जब तुम्हारे दिल से बात निकलती है दैट इट कनेक्ट टू द यूनिवर्स। सो दैट इज सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मैंने आपको बताया साइंस की लैंग्वेज में, वट एवर यू वॉच, यू ऑब्जर्व, यू बिकम, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। की लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं हेल्थ के लिए, मनी के लिए, रिश्तों के लिए। मैंने आपने उसको एक नाम दे दिया। ओके, और मैं बहुत खुश हूँ that you asked me that question and I'm able to explain to everybody because that's a big thing people are talking about, law of attraction. Yes, law means कि law है, ये change नहीं होता। Okay, we have a 10% tax we have to pay, that's a law, it's not going to change. So that is so called law of attraction. It is a law, you attract whatever you are thinking of. If you are attracting a poverty, if you are attracting I am, माला जप रहे हो, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, रुकते नहीं है, रुकते नहीं है, दिस इज सो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू आर अट्रैक्टिंग, पैसे नहीं रुकना, पैसे नहीं आना, खर्चा ज्यादा होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू आर अट्रैक्टिंग योर हेल्थ। बट ये बहुत बड़े श्राप दिया उन्होंने कि तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, I can fulfill your all desires, but your worldly mind is not thinking what you need, what is good for you. Your worldly mind is talking about what is the miseries in my life. कभी बोला है किसी को कि वो मेरा बेटा तो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बात है सुनता है? यही बोला कि सुनते नहीं है, वो सुनते नहीं है, वो करते नहीं, अपनी मर्जी करते हैं। कि मैंने तो इतना कभी बोला है कि मैंने तो इतना अच्छा रेस किया, लाइक आई डिड माय बेस्ट। उनको यही सुनाते रहते कि हमारे टाइम में तो ऐसे होता था, हम पैसे को ऐसे निकालते नहीं थे, बट नाउ दे आर चेंज्ड, दे वांट टू लिव देयर लाइफ, they are not looking for money, they already have money because we gave it to them, because we are well settled people, and they saw the phones luxury in their life, not like us. For people like us, we see like, oh, whenever it's end of the month there is no money in the home and we have to manage, mom has to manage, they have to open the those tins somewhere, like okay kahin se paise nikla hai to main doodh le aau. We saw that time, but our kids not. So why we are expecting them to learn from those things? Oh, हमारे टाइम में तो टीवी नहीं होता, तुम्हारे पास इतना कुछ है, तुम फिर भी नहीं सुनते। No, please go with the flow. Life attraction, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कभी नहीं बदलता, लॉ कभी नहीं बदलता, अगेन रिपीटिंग। तो तुम्हें बैठ के लिस्ट बनानी है कि व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन योर लाइफ, कि तुम्हें क्या डिलीट करना है, तुम्हें अपनी लाइफ में से डिलीट करो, ये डिलीट करना है अपने आप को। ये इतनी लंबी लाइन बन जाएगी, 2 महीने बैठ के बनाओ। ये मत बोलो मुझे ये आता है, नहीं आता, ये आता है, नो। अपने अंदर जाके देखो तो सही, क्या है मेरी लाइफ, क्या मैं जी रहा हूँ या जी रही हूँ, या मुझे क्या, मैं इतनी जो लेक्चर दे रही हूँ, मैं भी अपने आप को क्लीन करती हूँ। एवरी नाइट आई टेक शावर टेक्निक, एवरी नाइट, एंड आई वो जैन में मंत्र आता है, उसमें तुम माफ करना, किसी को माफ करना और माफी लेना। लाइक पता नहीं दिन में मैंने कितने का दिल दुखाया है, या कितनों ने मेरा दिल दुखाया है, तो मैंने उनको भी माफी दी, उनको भी माफी दी और उनको बोला कि प्लीज मुझे माफ करो। इंग्लिश में बोलती हूँ मैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई राइट दिस मंत्र एवरी नाइट। उसको 3 बार लिख लेती हूँ या 5 बार लिख लेती हूँ, ज्यादा तो 7 टाइम्स। और विजुलाइज करती हूँ कि वो मेरा दिन कैसे गया था, किस किस को मैंने हर्ट किया होगा,
किसको मैंने जजमेंटल वे से देखा होगा, दैट इज ऑल्सो। सो एवरी डे अपना वेसल को क्लीन करते रहो एवरी नाइट, ताकि उसको अगले दिन अच्छा पानी मिल सके, ताकि वो पुराने पानी से भी वो गंदा ना हो जाए पानी पुराना वाला। So that is law of attraction. Raj bhai, I don't know what you want to attract. क्या अट्रैक्ट करना है आपको? ये आपकी नहीं टोपी के ऐसे ही नीचे के कुछ एक जनो सब अभी क्या है कि नंबर वन इज फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यू नो। अभी तो क्या हुआ ना, आपने कहा ना कि सब लोग जो 50 60 70 साल के हो गए हैं तो वो उनके जीवन में नंबर वन कि भाई मेरी हेल्थ अंत तक अच्छी रहे। आपने कहा ना कि भाई मैं सब कुछ okay, let me अपने stop आप को here. करके चले जाऊं। Let me stop here. So whenever we become little bit like over 50, so we are open our hands. यो अब तो हम बुढ़े हो रहे हैं, हमारी सेहत अच्छी रहे और हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे। But why? It is normal to be healthy. Just be blissful. Just be happy. सिर्फ सोचो कि अपने अंदर क्या डाल रहे हो। कोई टीवी तो नहीं हर समय डाल रहे, ओके गंदी बातें तो नहीं आप हर समय डाल रहे कि वो उसने क्या किया, उसने क्या किया, इसने। हम बोलते हैं होलिस्टिक, हम अपनी होलिस्टिक अप्रोच बोलते हैं कि जो तुम अपने मुंह से निकालते हो ना वो यूनिवर्स में जाता है और फिर वो वापस आता है। तो सोच के बोलो, कम बोलो, मौन व्रत रखो 2 घंटे का, 4 घंटे का, कि वो मेरे को बोलना नहीं है, कंट्रोल करना है अपने आप को। सो डोंट गो टू दैट पॉइंट कि 30 के बाद ही सोचने लग गया कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करनी है, कि नहीं मैं तो मेरी तो ठीक ही है, करनी क्या, रखनी क्या है, क्या रखना है, नो मेरी तो ठीक है, वो तो ऐसे ही चलती आ रही है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने इधर उधर करके खराब कर लिया है तो मैं इसको ठीक कर लूंगा। अभी तो नीलम जी ने इतनी सारी टेक्निक दे दी, कभी उनको टेक्स्ट करके पूछ लूंगा कि वो इसका क्या करूं मैं, मेरे को तो खारिश होती रहती है, मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन होती है, मैं तो पूछ लूंगा उनसे क्या करूं इसका, कोई बड़ी बात ही नहीं है। डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ द एज। ओके, आई नहीं, थिंक आपने आई सही आंसर्ड बात योर की। क्वेश्चन। नहीं, आपने सही बात की। जो भी हम बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है। वो जो बूमरैंग बोलते हैं ना, बूमरैंग की तरह वापिस आता है। जो बूमरैंग वो एक, आपको तो पता ही होगा कि बूमरैंग क्या है, जो फेंका वो वापिस आता है। बस ऐसे ही होता है। तो थैंक यू वेरी मच। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। इफ नॉट वी विल conclude, Neelam ji. Yeah, sure. Sure. I So don't know. far, yeah, so far there is no one has Yeah, raised a there's none. question. Oh, Okay. मैं तो देख नहीं पा रही सबको, but it's okay. anybody has Um, question? If you have a No, question, you have to turn on your video. and raise your hand once again. Yeah, and turn on your video if you have a question. If not, Yeah, we should move uh, forward. we'll नीलम जी ने जो काफ़ी चीज़ें बताई, तो हम धन्यवादी हैं कि आप आए। और सो मेनी होलिस्टिक अप्रोच, क्योंकि क्या प्रवीण भक्ता ने हैंड रेज़ किया है, लेकिन हाँ, मैं लाता हूँ प्रवीण भाई को। आ गए। Unmute कर जो प्रवीण काका। Yeah. Ram Kabir, Reverend, thank you, Nilaman. It was a very, very pleasant discussion of the positive mind. And I always try to do that myself. But the problem always comes is that we only have 24 hours and the time limits that we have. So we can apply so many things in our life. So techniques बहुत सी है, लेकिन कौन सी अप्लाई करनी है वो हमें करना है। तो दैट्स द ऑलवेज हमारी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि बहुत सी टेक्निक सीखते हैं लेकिन वो टेक्निक इतनी सारी, बॉडी हमारी कॉम्प्लिकेटेड है कि सबको हम करें तो भी उसकी वो नहीं चलती। इसीलिए आपको मैं आप बताइए कि आप कैसे कर रहे हैं। okay, thanks for nice question. तो हमने अभी जैसे दिवाली की सफाई की, राइट?
बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे बर्तन थे, बहुत सारे निकाल दिए। सो अब ये सोचो कि सब कुछ अगर हम एक ही चीज में, एक ही कमरे में, एक ही चीज में सब चीज घुसा घुसा के रखेंगे तो क्या होता है। सो वी हैव टू फाइंड आउट कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या, व्हाट इज अवर प्रायोरिटी। ओके, हम वो पुराने कपड़े निकाल देते हैं जो हमें नहीं यूज करने होते हैं, और हम नए रखते हैं या थोड़े रखते हैं, फर्नीचर भी बदल देते हैं, बर्तन भी बदल देते हैं। तो क्या हम अपनी लाइफ में हम अपनी प्रायोरिटी देखते हैं कि हमें चाहिए क्या। अभी जैसे कह रहे हैं ना 24 आवर्स, अभी बस हमारे पास 24 आवर्स ही है। अब वो जो दुखी आत्मा है जिसके पास खाना नहीं है, उसका देखो तो उसके 24 आवर्स बहुत लंबे होते हैं। उसको लगता है कि कैसे गुजरेंगे 24 आवर्स, ये कैसे कैसे निकालूंगा मैं। ओके, सो वी आर ब्लेसफुल अगर हमें 24 आवर्स कम लगते हैं। ओके, दूसरी चीज ये है कि हमें चाहिए क्या। ओके, अगर हमें पैसा चाहिए तो हम उस पे लॉ का अट्रैक्शन लगाएंगे कि हमें पैसा कमाना है। अगर हमें सेफ चाहिए तो हम उस पे कराएंगे कि हमें ये कमाना है। ओके, अगर हमें हमें सोशल लाइफ करनी है कि वो हमें यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है। आप मानेंगे नहीं, अगर आप अपना उठ के अगर रात को सोने से पहले अगर कल का टाइम टेबल बना लेंगे ना, 30 दिन तक बनाए, मैं जल्दी वापस नहीं आती हूँ, तो आप वो टाइम टेबल बनाए रात को सोने से पहले। ओके, 15 मिनट का अलार्म लगा के रखें कि 15 मिनट मैंने ये लिखना है। टाइम टेबल बना लें अगले दिन का। फिर देखें कि आपके 24 घंटे कैसे यूटिलाइज होते हैं। और आपको क्या करना है, आपने सब कुछ तो नहीं कर लेना ना। आपको सब कुछ थोड़ी चाहिए। आपको पता है कि मुझे इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे मुझे यहाँ जाना है, मुझे इतने बजे यहाँ जाना है, इतने बजे जा वो वो थोड़े दिन में अपने आप ही लाइफ स्टेबलाइज होती है। जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज, ओ चलो कोई चीज का क्या जवाब देना, अपनी अपने आप को ही देख लेते हैं। ओके, मैं मर गई आज। ओके, तो आप देखेंगे ना कैसे लाइफ ऐसे बर्ज हो जाती है बाद में। हम तो देखते भी नहीं है, पर हमने देखा है कि वो थोड़ा सा दर्द होता है, लाइक या दुख है, पर हम क्या कुछ भी करना छोड़ देते हैं। क्या हम पार्टी करना छोड़ देते हैं सुबह। क्या हम खाना खा मैं भी 10 दिन नहीं खाते तो खाना खा ही लेते हैं बाद में। फिर वो पॉटी भी जाते हैं, फिर वो पानी भी पीते हैं, फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। हाँ, दुख को साथ रखते हैं हम, पर वो दुख हमें बॉडी को खराब ही करता है। बट अगेन मैं एक बहुत वर्स एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि मेरा एनएलपी मेरा टॉपिक है। ओके, एनएलपी में यही कहते हैं कि तुम हर चीज को बहुत डिटेल में चले जाओ और ऐसी ऐसी चीजें बोलो कि मजाल है बंदा वो कर जाए। तो इसीलिए मैं हमेशा वर्स टॉपिक वर्स देती हूँ एग्जाम्पल आपको, कि आप अपना एक बार देख लो कि करना क्या है पूरा दिन। फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, पर देखना अपनी लाइफ एकदम सेटल हो जाती है। वही 24 घंटे बड़ी ब्लेसफुल लगने लग जाते हैं। ज्यादा कुछ करना नहीं है परवीन भाई, ज्यादा लाइफ में कुछ करना ही नहीं है हमें। अगर देखो, मैं भी सोचती थी कि भाग रही हूँ भाग रही हूँ भाग रही हूँ। वो बैंक अकाउंट आफ्टर सम टाइम उतना ही रहता है, थोड़ा ऊपर हो जाता है, थोड़ा नीचे हो जाता है, कभी ज्यादा पैसे आ गए। ओके, फिर उतने ही कम हो गए। तो वो ऐसे ऐसे ही रहता है। कितना चाहिए हमें, काम कितना करना है, कितने मोटर लेने हैं, कितने। अगर मैनेजर को भी अगर आप प्यार से सोचोगे ना कि ये मैनेजर तो मेरा इतना अच्छा होटल चलाता है और बड़े पैसे कमा के देता है, तो वैसा ही बन जाएगा। अगर आप बोलोगे ना कि ये तो चोरी करता है चोरी करता है, चोरी करने लग जाएगा वो। देख लेना करके। तो वही 24 घंटे में कैसे जिंदगी जीनी है कि तुम्हें चाहिए क्या वो रखो, और बाकी जाने दो। ट्रैश को थोड़ी रखते हो, रोज ट्रैश फेंक के आते हो बाहर, फिर उसको एथेंस वाले को पैसे भी देते हो मंथली, राइट। Right, right. Yeah, no, thank you very much for that answer. And we really enjoy. And like I say, it's the implementation that I have to do. इम्प्लीमेंट, Actually. यस। Continuous implementation. If we आप जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, कुछ ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ना करें, बट ऐसे बस मजे में रहा करें। वॉलीबॉल खेलने जाएं, कभी समाज में जाएं, दोस्तों के साथ मिले, बस। और यही करना है मुझे, यही करता हूँ मैं। खुश रहो। या थैंक यू, इसीलिए तो मैंने ये कपड़े पहने, मैं यहाँ से वहां ही जा रहा हूँ वॉलीबॉल खेलने के लिए। मुझे सब पता रहता है स्क्रीन के पीछे कौन क्या कर रहा है। नो, जस्ट किडिंग। ओके, नमस्ते सबको। ओके। मैं एक प्रेयर करूंगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. Om Shanti, Shanti, Shanti in my heart, in my neighbor, in my family, in my co-workers, everywhere. I'm so blissful, thankful, blissful, thankful. Thank you. Thank you so much. Thank you, Nilamji. And so Ram Kabir, we'll see you next Sunday. And Nilamji, keep coming and showing us all these technique, holistic approach so that we just celebrate our life on planet Earth. Thank you very much. Yes.